छह। Hello and welcome once again to Elections on My Plate. Coming to you this week from Ahmedabad, the largest city of Gujarat and one which has really defined the politics of this state over the last quarter of a century. Gujarat today is India's most urbanized state, and it's the urban centers that have really driven the BJP's juggernaut across Gujarat. The big question, of course, will 2022 be any different? Will the BJP continue to dominate urban Gujarat and then spread beyond? Or are there new cleavages, new divides emerging? Or is the BJP's election machine simply too powerful for its political rivals? Let's try and find out. Join me on Elections on My Plate. First to Ahmedabad, the city of my birth. अरे अरे वाह 64 yards. हाँ 64. 64 આ શું છે શું પણ હા I want to know from all of you are all very fit here. Huh? Every morning? What are you? Huh? Every morning. Huh? તમે fit, you are all fit India. What are you all going to do? Marathon? What are you all going to do with all this We are fitness? doing generally CrossFit high intense workout over here and it's completely free for all. That is because you all eat all that वो घी आप लोग इतना डालते हैं ना खाना में फिर एक्सरसाइज तो करना पड़ता है क्या होगा चुनाव में चुनाव में तो क्या होगा यहाँ पे तो बीजेपी है यहाँ तो बीजेपी है हाँ बीजेपी है और कोई उसके टक्कर में नहीं है दे आर डूइंग वर्क हाँ। काम कर रहे हैं वो लोग हाँ अल्टीमेटली 20 साल 25 साल से कर रहे हैं एंड वी डोंट सी अ मैकेनिज्म ऑन अदर साइड શું કરો છો સવારે बस मॉर्निंग वॉक मॉर्निंग वॉक कितना वॉक करते हो एक घंटा 1 घंटा वॉकिंग वेरी गुड क्या होगा इलेक्शन में बीजेपी मोदी साहब ने अच्छा काम किया है कांग्रेस तो कहीं पैर भी नहीं है दूर तक नहीं है और आम आदमी पार्टी वो भी नहीं है नहीं है नहीं। તમારા મસલ સરસ છે लेट्स सी अच्छा लेट मी ट्राई दिस ये कैसे करते हैं बे हाथेથી જોર લગાવો સર Wow! Wow! Woo! great Ladies are better than men. घनघोर झर चहुर मारू मोर बनी थन गट करे मन मोर बनी थन गट करे मन मोर बनी थन गट करे Okay, my first stop on this Ahmedabad elections on my plate is slightly nostalgic because I've come to the building where my grandparents used to live for several years. My grandfather was a retired police officer and this is where they lived for their post-retirement years. My grandparents are no longer with us, so I've come here to find out if at least some of the staff is still there. Memories of childhood. Come with me. अहमदाबाद की हाल कैसे हैं? बस देखो हाँ? अभी चल रही है इलेक्शन की सब तैयारियां चल रही है सबकी इलेक्शन की तुम खड़ी रहोगी क्या इलेक्शन में दिलाते हो टिकट कौन सा पार्टी से टिकट लोगी आप दिला दो मैं खड़ी हो जाती हूँ तैयार हो टिकट लड़ने के लिए इलेक्शन हाँ? नहीं अपनी ताकत नहीं है नहीं है तो किसका जोर किसका ज्यादा है इधर बीजेपी का है कांग्रेस का है सभी का लग रहा है ज्यादा सभी का लग रहा है का ज्यादा सबके मुंह से झाड़ू वाले का सुन रही है केजरीवाल का ज्यादा सुन रही है अच्छा केजरीवाल का इधर चल रहा है ज्यादा चल रहा है ज्यादा चल रहा है केजरीवाल का तो बीकॉम का ग्रेजुएट करेगा क्या देखते अब आगे जॉब वॉब मिले तो ठीक अहमदाबाद में नौकरियां ही नहीं है ने अच्छा नहीं है अरे अपने वो क्या बोलते सरकारी तो ठीक प्राइवेट में भी नहीं है तो तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को जॉब नहीं मिल रहा है जॉब अभी कोई नहीं है अमुक के जगह कोई रिक्शा चला रहे हैं हाँ फिर कोई जगह कोई अपने फैक्ट्रीज वगैरह में जॉब कर रहे हैं तो बीकॉम करके दुकान चला रहे हो हाँ ये अच्छा है हाँ ये ठीक है करना ठीक लगता है हाँ छोटा मोटा बिजनेस करना अच्छा लगता है तो बिजनेस गुजराती वाले बिजनेस में नंबर 1 होते हैं Okay, my nashto or early breakfast in Ahmedabad is here at Lucky Restaurant.
Lucky because it's an unusual restaurant like no other. Built on a Kabristan, some of the graves are still there, and it's got an original Hussain painting because the great Hussain would paint and have the lucky chai. And that's what I'm going to do. It's time for Chai Pe Charcha with a little bit of Ban Maska at Lucky. Come with me. Kabristan, food among the dead. Come with me. Kem cho? Hello. Mr. Ajay Umat, Gopi Ben, kem cho? Saurabh, kem cho? Gopi Manyar of Aaj Tak and India Today, Saurabh Vakhtani of India Today, and Ajay Umat of Ahmedabad Mirror. Ready for Chai Pe Charcha? Chai Pe Charcha. Are chai lana, chai, ban maska. That's what we need. Huh? Kaun jitwanu election? Who's going to win the election? BJP will win the election. એમાં તો કોઈ બેમત કોઈને પણ નથી લાગતું. There is no doubt. No doubt about it. BJP will win. So it's now only a question of the margin, is it? Margin and vote share. Margin and vote share. You are telling me I have come all the way to Ahmedabad and you already know who the winner is? अगर देखिए आम आदमी पार्टी अगर नहीं होती चुनावी मैदान में तो ये बहुत टाइट सिचुएशन में होता क्योंकि कांग्रेस एंड बीजेपी ये दोनों के बीच में कंटेस्ट हो रहा होता लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी है तो कहीं ना कहीं वोट को डिवाइड कर रहा है। हाँ, ये आ गया बन मस्का। बीजेपी को मस्का मत लगाइए, केवल बन को लगाइए। Few months ago when I came here there was a momentum for AAP. Is that momentum gone? I certainly see that for last couple of weeks they have backed out from the campaign. I don't see such strong campaign which was going on for past so many months. So I see something they have backed out from. And Congress, I see they are performing superb door to door and ground Congress level. is doing well door to door? Very well on ground. So you actually think the Congress can do but as well as 2017? They got 77 seats? They got 77 seats. Radip, Congress strategy this time may be part of strategy not to bring Rahul Gandhi. Because, अगर राहुल गांधी लेके आते तो वो पोस्टर बॉय बनता और अमित भाई और मोदी would hit him with whatever stick available. They did not bring Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi. मोदी वर्सेस राहुल नहीं बनाना। ताकि वो बनाना ही नहीं चाहते हैं, वो एकदम लो की रखना चाहते हैं। आप लोग सब कह रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है। क्या है? Why is BJP winning? एक वन सेंटेंस में कहूँ, बीजेपी may not win, they will manage their victory. They know how to do smart polarization. मैं तो कह रहा हूँ कि बीजेपी का वोट शेयर कम भी होगा 3%, 4%, फिर भी बीजेपी की सीट बढ़ेगी। Because the opposition vote is divided. मैं आपको बताऊँ। No, between AAP and Congress. So AAP is taking Congress vote away mainly. 80% vote आम आदमी पार्टी is taking from Congress party. So आम आदमी party but single digit. Single digit. Hindu-Muslim politics is still played out on the ground. BJP leaders are openly saying about it. हिंदुत्व ही हमको लेके आगे बढ़ना है. They are openly saying it. Even Hardik Patel or be it any other lead, they are openly saying that we have to take forward Hindutva. But does Hindutva mean anti-Muslim politics or does Hindutva mean कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं? गर्व से कहो हम हिंदू, obviously. अब ये कैबिनेट का लास्ट डिसीजन क्या था मालूम है? बिफोर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड. अब गुजरात के हर आदमी को लगता है सर ये सरकार आएगी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा. वो द्वारका में मुस्लिमों के इलीगल एनक्रोचमेंट जो तोड़ने वाली बात है वो क्या दर्शाता है? वो खेड़ा मातर में मुस्लिमों का फ्लॉगिंग किया वो क्या बताता है? आज तक किसी के सामने एक्शन नहीं हुआ राजदीप. So nobody, all the policemen who did the flogging in Kheda of Muslims, no action. No action. ऐसा कहा. So it's a strong. So it believes in this Hindutva politics. इसमें एक है elephant in the room, Modi ji. Modi ji is in Delhi. Is this election about Bhupendra Bhai or Narendra Modi? डबल इंजन क्यों? डबल इंजन सरकार. Double engine सरकार. नरेंद्र मोदी. नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी वन मैन शो इन गुजरात. और even now. सर मैं आपको बताऊं Even now. यस सर. so much popular. मोदी जैसा कोई नहीं. गुजरात में जब भी मोदी आते हैं तो लोगों का एक ही नारा है कि मोदी जैसा कोई नहीं. देखो हम मोदी जी का मस्का नहीं कर रहे हैं लेकिन मन मस्का तो खाएंगे. जो फैक्ट है वो कहते हैं. We are fact. You have to give credit. यहाँ पे जब परेश रावल जीते
तो परेश रावल ने एक डायलॉग बोला था कि राम के नाम पे पत्थर तय जाते हैं और मोदी के नाम पे लोग जीत जाते हैं। Unemployment is an issue, price rise is an issue, but farmers distress is an issue, Yes. and yet people are saying Modi hai to mumkin hai. And infrastructure you see only in Ahmedabad, Rajkot and Vadodara or Surat. After that you don't see any urban development in Gujarat. And despite that, despite all of that, you are all three are saying that Modi hai to mumkin hai. Chalo. On that note, thank you very much for your Chai Pe Charcha. Thank you, sir. Plenty more ahead. You are watching Elections on My Plate. Gujarati chai. चाय पे चर्चा। બહુ મીઠી છે. Okay, we've driven about 150 kilometers out of Ahmedabad to here in Vadgam in Banaskantha district of North Gujarat. This is one of the most watched constituencies in Gujarat this time because the Congress candidate here is Jignesh Mevani, the young Dalit face of the Congress, firebrand activist who defeated the BJP in 2017 as an independent. 5 years later, the fight may be even tougher for Mevani in a constituency with a large Dalit, Muslim and OBC population. A traditional Congress bastion now facing the BJP's charge. Come with me. मैं ये बताना चाहता हूँ जिग्नेश मेवानी की लहर इसीलिए है अभी वडगाम तालुके में कि जब कोरोना का टाइम था उस टाइम में जिग्नेश मेवानी ने यहाँ पे बहुत बड़ी सेवा की थी। वो खुद क्या किया था? वो खुद मतलब के जो मतलब पेमेंट की जो जरूरत होती थी उन्हें हर एक मतलब चौराहे पर खड़े होके उसने खुद वो डब्बा लेके घुमा था और पेमेंट कलेक्शन किया था और ऑक्सीजन प्लांट की उसने तैयारी की थी। लोग अपने आप को हिंदू देखते हैं या दलित पहले देखते हैं या दलित समाज का उद्धार करना है? दलित को हिंदू मानते ही नहीं है। कौन मानते हैं दलित? ये नहीं मानते आपको? नहीं मानते। नहीं, छूत अछूत अभी भी चलता है। अभी भी चल रहा है। अभी भी चल रहा है। दलितों का वोट चाहिए तब हिंदू बना देते, बाकी तो हम लोगों को कौन हिंदू स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है ना दलितों को। हमें मंदिर में नहीं जाने देते हैं। हाँ, अभी भी आप मंदिर नहीं जा सकते। अगर शादी हुई तो भी नहीं। घोड़े पे नहीं चढ़ने देते ना। घोड़े पे नहीं। मूछ रखने से भी प्रॉब्लम है। पर आपने अच्छी मूछ रख ली है। वो तो हम शहर में रहते ना, गांव में अभी तो कहाँ मूछ नहीं रखने देते, घोड़े पे नहीं चढ़ने देते। दलितों को क्या मिल रहा है? तो आप हाँ, कहीं कहीं ऐसा बनता है कि अगर दूल्हा अपने घोड़े पे बारात लेके जाता है तो उन सारे के बिरादरी पे कोई पत्थर मारता है। अभी भी होता है। यहाँ पर मुझे रख लेते हैं तो फिर उनको दबंग जाती है, मारती है, सब मारपीट होती रहती है और फिर भी गुजरात सरकार हिंदुत्व की बातें करती है। हम तुम्हारे साथ हैं। Jignesh Mevani here in Vadgam as he does these street corner meetings. Jignesh bhai, क्या आप मानते हैं? Do you accept that this election is more difficult than 2017 for you? पूरी BJP wants Jignesh to be defeated, and that is a great credit that can be attributed to my ideological commitment. I am not moving an inch from where I was in 2017 and prior to that. I vote this country to ensure social justice for tribals and Dalits and secularism for everyone, and therefore BJP is targeting me. But I am pretty relaxed. You're relaxed? Cool. I am composed. And all these people, just see their faces, the kind of love and affection they have for me. So no matter Modi tries hard, Vadgam will win. आप कह रहे हैं वडगाम जीतेगा?
बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ मोदी जी की, जैसे मैंने कहा, पूरी सेना लगी हुई है यहाँ और इस बार AIMIM ने कैंडिडेट रखा है, आम आदमी पार्टी ने भी कैंडिडेट रखा है, तो ऑपोजिशन वोट कैन गेट स्प्लिट ऑल्सो. सो द जनरल फीलिंग इज जिग्नेश मेवानी कुड फाइंड इट मोर डिफिकल्ट दिस टाइम देन 2017. मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ. इतना मोहब्बत, इतना प्यार, इतना सपोर्ट, मेरी खुद की उम्मीदों से ज्यादा सपोर्ट है. ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ. जितने ओपिनियन पोल आ रहे हैं सब कह रहे हैं बीजेपी विल गेट 120 to 130 सीट्स, कांग्रेस 40 to 50 आंकड़ा पार करेगी. कांग्रेस और 27 साल की भाजपा की तानाशाही और घमंड दोनों इस बार चकनाचूर हो गए. वी विल फॉर्म द गवर्नमेंट, वी आर प्रेडिक्ट श्योर. दलित मुस्लिम पॉलिटिक्स जो है यहाँ, दलित है, मुस्लिम, OBC लार्ज नंबर्स में है. यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं. क्या आप मानते हो कि ये एक तरफ हिंदुत्व की पॉलिटिक्स, दूसरी तरफ दलित मुस्लिम पॉलिटिक्स? लेकिन यहाँ दलित मुस्लिम एक भी नहीं है. यहाँ तो केवल भारतवासी है. यहाँ केवल भारतीय नागरिक है. और सबको पता है कि जब कर्मावत के तालाब में नर्मदा का पानी आएगा तो उसका बेनिफिट सबको मिलने वाला है. जब ऑक्सीजन का प्लांट जिग्नेश भाई ने बनाया और जो 254 लोगों को लाभ मिला, वो तो सभी समुदायों से. नहीं, ये तो मोदी जी भी कहते हैं ना कि जब अच्छे रास्ते बने या बिजली आई तब वो सबके लिए मिले, ना हिंदू ना मुसलमान, सबको मिली. वो तो इसी बनासकांठा में हम ये भी कह रहे थे कि मित्रों, हैंडपंप चलाओ, खनिज तेल निकलेगा. आज पूरे मुल्क का तेल निकाल दिया. जिग्नेश भाई, 2017 में यू आर सीन एज यंग टर्क. आपके साथ अल्पेश ठाकुर, अभी भी यंग है आप. हाँ, मुझसे तो यंग है. अल्पेश ठाकुर थे आपके साथ, वो बीजेपी में चले गए. हार्दिक पटेल आपके साथ आंदोलन में थे, पटेल आंदोलन में, वो चले गए बीजेपी में. आप अकेले रह गए, बाकी जो युवा नेता है सब बीजेपी चले गए. सब देख रहे हैं हवा किस तरफ चल रही है. मैं अपने ईमान पर कायम हूँ. मैं इस जीवन काल में पृथ्वी का गोला उल्टा होना है तो हो जाए, लेकिन जीवन में कभी मोदी और भाजपा से समाधान नहीं करूंगा. कभी नहीं करूंगा, नहीं ही करूंगा. आई एम वेरी क्लियर एंड सॉर्टेड इन माई हेड. जिग्नेश मेवानी, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सर. एंड वी विल सी कि आप ये जो चैलेंज आपको एक तरह से मोदी जी को आज आपने यहाँ बैठकर चैलेंज दिया. चलिए जिग्नेश मेवानी, एज आई सेड, वी विश ऑल द कैंडिडेट्स द वेरी बेस्ट. देखते हैं आगे आगे क्या होता है. Okay, now Jignesh Mevani is not the only young Turk from the 2017 elections contesting this time in 2022. Hardik Patel, then the face of the Patidar agitation, has switched sides from the Congress to the BJP and is contesting here in Viramgam on the outskirts of Ahmedabad. So we've driven from Vadgam to Viramgam to check out how Hardik Patel is facing his political debut in elections. Let's meet him. हार्दिक भाई, कैसे हैं? अच्छा हूँ. टाइगर जिंदा है? क्यों नहीं, क्या दिक्कत होगी? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है इसी विरमगाम में मैं आया था 5 साल पहले. तब आप एक तरह से कैंपेन कर रहे थे लेकिन बीजेपी के खिलाफ. आज बीजेपी के कैंडिडेट बन के आए हैं. क्या फर्क हुआ, क्या वजह हुई कि हार्दिक पटेल 5 साल में इतना बड़ा आपने चेंज कर दिया? 17 का चीज अलग था क्योंकि वह सामाजिक मुद्दा था. सामाजिक मुद्दा खत्म हो गया. केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने 10% रिजर्वेशन लागू किया, तो उसके बाद एक सामाजिक मुद्दा जो था जिसके लिए लड़ाई 17 में थी वो खत्म हो गया था. यानी पाटीदार का जो मुद्दा था वो एक्चुअली खत्म हो गया था. तो फिर पॉलिटिकली स्वाभाविक है कि एजिटेशन स्वार्थ पे नहीं होते, कभी एजिटेशन मुद्दों पे होते. और मुद्दों के साथ जब आंदोलन हो गया था पूरा, तो स्वाभाविक से पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करा. ये कहा जाता है कि आपके खिलाफ जो केसेस किए गए थे बीजेपी ने विड्रॉ किए, इसलिए हार्दिक पटेल ने साइड विड्रॉ हो गए. आपको मालूम है विड्रॉ हो गए? ये कहा जा रहा है कि आपके खिलाफ 32 है. अभी भी 32 केस आपके खिलाफ, तो केसेस विड्रॉ नहीं हुए. वो तो समयांतर कोर्ट में हो गए ना. आपको कांग्रेस और इनमें क्या फर्क लगा, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में? जो लोग गुजरात की गौरव और अस्मिता के लिए काम करते हैं हम उसके साथ रहते हैं. भारतीय जनता पार्टी गुजरात की अस्मिता और गौरव के लिए लगातार लड़ती है. कांग्रेस ने लगातार गुजरात की गौरव और अस्मिता के खिलाफ काम करने का प्रयास किया है. तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जाना ही आपकी गलती बिल्कुल सब लोग, इसलिए तो सब लोग छोड़ रहे हैं. मैं अकेला थोड़ी, वो तो सिंधिया ने भी छोड़ा है, गुलाम नबी आजाद जी ने भी छोड़ा है.
अशोक तंवर ने भी छोड़ा है। सब लोग धीरे धीरे समझते वो सब लोग उनसे दूर जा रहे हैं, खफा हो रहे हैं। आप गाड़ी में हट जाइए तो चलते चलते बात गाड़ी आप लई लेना, गाड़ी में चले या कहाँ कैसे गाड़ी में चले? प्रवीण भाई गाड़ी में चलते हैं। जब आप नरेंद्र भाई जी का नाम लेते हैं, मुझे वो वीडियोस याद आते हैं जब आपने उन पर कठोर प्रहार किया था मोदी जी पर। तो वो हार्दिक और ये हार्दिक में कैसे ये बदलाव कैसे आ गया? अरे राजदीप जी, आंदोलन आक्रामकता से ही होते हैं भाई। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि 10% रिजर्वेशन लागू हुआ है। जब आपको कहा जाता है हार्दिक पटेल अपॉर्चुनिस्ट है, हार्दिक पटेल ने अब केवल अपने पॉलिटिकल एम्बिशन के लिए यहाँ से वहाँ चले गए, वर्किंग प्रेसिडेंट बने कांग्रेस के। और जब आपको लगा कि कांग्रेस में आपका चल नहीं रहा है, इसीलिए आपने स्विच किया। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, आपका हुद्दा मतलब आपका जिम्मेवारी क्या है अभी न्यूज में? और फिर आपको ये भूमि ना दे तो क्या करोगे? जिम्मेदारी लेके घूमते रहोगे? किसी का इंटरव्यू नहीं करने देंगे तो राजदीप जी क्या करोगे आप? पद देना बड़ी बात नहीं है, उसके लिए कौन सा वर्क दिया आपको? तो आप कह रहे हैं कांग्रेस में आपको पद दिया लेकिन कोई काम नहीं दिया गया? नहीं था ना, हम राजनीति क्यों लोग काम के लिए करते हैं ना, राजनीति पद के लिए नहीं होती। और यहाँ पर भी मैं 6 महीने कार्यकर्ता की भूमिका में था। तो आपने राहुल गांधी से ये बात नहीं कही कि देखिए मुझे पद दिया, कोई कार्य नहीं है, ये हो रहा है? आपने राहुल गांधी के साथ संपर्क नहीं किया? क्योंकि एक समय तो आप राहुल गांधी की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। देखिए, राहुल गांधी के पास विजन ही नहीं है तो उससे बात करके मैं क्या करूंगा? कितनी बार बोला कि गुजरात के लिए आप गुजरात के खिलाफ लगातार बोलिए मत, गुजरात के व्यापारियों को गाली मत दीजिए, गुजरात की अस्मिता और गौरव पर लगातार सवाल मत उठाइए, लेकिन उनको समझना ही नहीं था तो अपन ने छोड़ दिया। और अब मैं कांग्रेस के बारे में बात करूंगा तो मुझे क्या फायदा है? विकास की बात करते हैं। जनता के सामने 2 बड़े मुद्दे मैं देख रहा हूँ गुजरात में युवाओं के, क्योंकि आप युवा हैं। एक बेरोजगारी और दूसरा जो पेपर लीक्स हो रहे हैं उसकी वजह से एजुकेशन सिस्टम। ये दोनों पर क्या आप जोर दे पाएंगे? क्योंकि क्या आप मानते हैं ये बड़े परेशानियां हैं यंग लोगों के लिए? देखिए, बेरोजगारी की जहां तक बात है तो ये आपके नॉलेज के लिए कि गुजरात रोजगारी के मामले में आज भी अव्वल है। गुजरात में स्थानिक नौकरियों में और सरकारी नौकरियों में गुजराती मतलब यहाँ के नौजवानों को प्रथम जिम्मेवारी भी मिलती है और अपना अपॉर्चुनिटी भी मिलता है। सर, तलाटी की नौकरी के लिए लाखों ने अप्लाई किया, केवल कुछ 100 लोगों को लिए नौकरी मिल रही थी, लाखों में एप्लीकेशन हुई। ये गलत बात है, 100 लोगों को नहीं मिलती, 12-13 हजार लोगों की रिक्वायरमेंट होती है और सरकार उतने लोगों पर लाखों ने अपॉइंटमेंट तो करेंगे ना। लाखों ने अप्लाई किया। भाई, मैं क्लार्क का जॉब कर रहा हूँ और मुझे तलाटी के लिए एग्जाम देना है तो मैं भी अप्लाई करूंगा। नहीं, क्या आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं है? बेरोजगारी तो प्रदेश के हिसाब से होगी। सरकारी नौकरी 10 लाख ही होती है मेरे भाई। सरकारी नौकरी 10 लाख से ज्यादा 1 करोड़ नौकरी हो सकती है, आप बताइए मुझे। तो स्वाभाविक है सरकारी नौकरी के लिए सबकी इच्छाएं होती है कि मैं सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करूं, तो वो तो आंकड़ा बड़ा दिखेगा। लेकिन गुजरात में सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी, स्थानिक नौजवानों को जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है, उन लोगों को फायदा मिलता भी है और उनको मिलती भी है। दूसरा, आपने कहा पेपर लीक की घटना, मैं बिल्कुल मानता हूँ पेपर लीक की घटना नौजवानों के भविष्य को धुंधला करती है और उसके लिए कानून बनना चाहिए। मैंने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी कहा था और जब मैं नहीं था तब भी कहा था। कितने सीटें आएंगी बीजेपी को? 50 सीटें आएगी। 150। तो आप कह रहे हैं माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड तोड़ देगी बीजेपी इस समय? ऑल रिकॉर्ड टूटेंगे और 150 सीटों के साथ फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हार्दिक भाई, आपने हमसे बात की, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अभी भी आप अपने आप को यंग टर्क मानते हैं कि नहीं? हाँ, अभी भी यंग है। आप भी यंग है ना? आपके बालों में अभी तक सफेदी नहीं आई। आपके पूरे बाल सफेद है। यही तो फर्क है। थैंक यू वेरी मच हार्दिक भाई, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। Okay, we've stepped away from the political rally of Hardik Patel to get a sense of Viramgam, because remember, this is 70 kilometers away from Ahmedabad, and like many small towns in Gujarat, hugely aspirational, but has only one college, for example, and most young people here have to travel to Ahmedabad for jobs. Let's get a bit of a Gathia chat here in Viramgam. Gathia che ke nahi? कई गाठिया छे? नाइस। कैसे है सर? बहुत बढ़िया सर। क्या होगा? विरमगाम की हाल कैसे है? विरमगाम का हाल तो ठीक नहीं है सर। जो मुख्यमंत्री है वो तो दिखाता ही नहीं है, मोदी ही करता है। मोदी तो केंद्र में आएगा ही आएगा, लेकिन इधर गुजरात का मुख्यमंत्री क्यों नहीं आ रहा है? वो क्यों नहीं बोल रहा है कि इधर गुजरात की पब्लिक को क्या तकलीफ है?
इधर फौजी तकलीफ है, फौजी आदमी को न्याय नहीं मिल रहा है। नहीं, विरमगाम में विकास हुआ है कि नहीं? विरमगाम में कहा विकास, आप देख लो। हाँ, गटर लाइन देख लो, विरमगाम का गटर लाइन देखो। इधर ये एरिया, इतना एरिया में पानी जाने की कोई जगह ही नहीं है। भारी बारिश आएगी तो क्या करेगी पब्लिक? ये सोसाइटी पूरी पानी से भर जाएगी। तो जब बारिश आई थी तब क्या हुआ था? हम कीचड़ में थे, पानी में इतने घुटने तक पानी था। लेकिन आप दिल्ली में मोदी जी चाहते हैं? मोदी चाहिए, दिल्ली में मोदी चाहिए, 100%, 101% चाहिए। और गांधीनगर में? गांधीनगर में लेकिन जो अच्छा काम करेगा वो चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री सामने आना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल नहीं आता? भूपेंद्र कहीं देखा ही नहीं हमने, शकल ही नहीं देखा है भूपेंद्र पटेल का। नहीं होता विकास। हाँ बताओ, विरमगाम में विकास हुआ है कि नहीं? अरे बहुत जोरों से हुआ और बहुत सारा हुआ है। कहाँ पर नहीं हुआ? कौन बोल रहा है विकास नहीं हुआ? विकास मतलब क्या? उन्होंने कहा कि विकास मतलब क्या है? इनका कहना है स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए। अरे जनता को बिजली, पानी और सड़क चाहिए, वो तीनों यहाँ पर है क्या? नहीं है? ये बोल रहे हैं ऐसे ही इतनी कंपनियां इधर लग गई है क्या? आप बिजली पानी से पेट नहीं भरता है, फिर किससे भरता है? खाना को रोजी रोटी मिलने से, रोजी रोटी भी चाहिए और दिकरियों लड़कियों को सम्मान चाहिए, हर चीज को चाहिए। ये कह रहे हैं बिजली सड़क मिल गई है, बिजली सड़क पानी आ गया है। बिजली सड़क से काम नहीं चलेगा तो देश के क्या अंदर। चाहिए आपको? पेट भरना चाहिए तो आदमी को, रोजी नौकरियां है रोटी कि नहीं? चाहिए। नौकरी देख लो भिखारी, गुजरात में कभी भिखारी आदमी नहीं मिलता है, लेकिन आज भिखारी आदमी भी रोड घूम रहे हैं। राजदीप सर जी आपको समझना होगा, एक मिनट। हाँ, राजदीप सर जी आपको समझना होगा, हमारी गुजरात की जनता बिजनेस में मानती है, जॉब में कम मानती है, लेकिन उसके हिसाब से जितनी मिलनी चाहिए उतनी जॉब मिली है। 27 साल में बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं या नहीं, कि क्या हिंदुत्व पर ही चुनाव लड़ा जाता है? सब बढ़िया काम किया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर समझने वाले अपने दिमाग का उपयोग नहीं करेंगे, अगर मगज से अंध और दृष्टि से अंध हो गए तो उनको दिखाई नहीं देगा। साहब दिक्कत नहीं होती तो अब ये दूसरी पार्टी क्यों आती इधर? पंजाब से आप पार्टी की हमको क्या जरूरत है? हम मोदी की सरकार है तो मोदी रहेगा ही, और मोदी रहेगा ही। मैं जिंदा रहेगा तब मोदी रहेगा दिल्ली के सीटों पर, दिल्ली के लेकिन आप केजरीवाल क्यों आया इधर? क्यों? केजरीवाल की क्यों जरूरत पड़ी? इधर कमी रहेगी तभी आई, अंदर घुस गई। क्या कमी है? कमी तो है, तभी तो बोला जवानों को बोला नौकरी नहीं मिल रही है, जवान दर भटक रहे हैं। झगड़ा बहुत हो गया, थोड़ा घाटियां खाएं। आप खाइए, ये है गुजरात। I'm going to take a गाठिया break and then we are off to Ahmedabad because I need a proper lunch break. मैं अभी गुजराती थाली खाने जा रहा हूँ अहमदाबाद। खाओ, बहुत बढ़िया होता है यहाँ का तो खाना। अच्छा, और मीठा भी होता है, आप इसलिए जुबान भी मीठी है हमारी, इसलिए आपसे प्यार भी हमारा ज्यादा है। अरे वाह, थैंक यू। लेट्स गो। Okay, now a lot may have changed politically in Gujarat, but one thing hasn't in Ahmedabad. The good old Gujarati thali at my favorite place, Agashe, in the heart of Ahmedabad, with this wonderful heritage building of the House of Mangal Das to greet you. Let's go for a classic thali. Mr. Mangal Das, how are you? Hi, Abhay. Good to see you. Place is looking as lovely as ever. Thank you. We try. Wonderful. I just said that elections can come and go. Some things remain unchanged in Ahmedabad. One of them is House of MG. And what you've done here is remarkable. Restoration, right? Yes. It's adaptive reuse, I like to call it, because the purpose for which the house was built as a home and what it is now is different. So when was the original home built? How many years ago? There are two wings. This particular wing, which is the CG wing, which we are in, was 1904. 1904. So this would be your great-grandfather probably? Great-grandfather. Wow. When he was first generation textile mill owner. So I want to tell our viewers that, you know, this is one of the original textile families in what was the great city of textiles in the early 20th century. So you've preserved all the old photos over the years, the family tree. What we made this house into, that we made a hotel out of it, but we tried to bring all the family archives and everything here, so it's become a repository of all the family legacy, including photographs, textiles, artifacts, jewelry, silver, everything is brought here. Is that heritage quality of Ahmedabad still intact? Because, you know, when we travel around Ahmedabad,
we almost feel that we are in new Ahmedabad. Is the old Ahmedabad still there? Do you believe it still is preserved, protected, more needs to be done? I don't believe heritage is static. I think what you mean is that our roots in heritage are deep. But Ahmedabad is one of the rare cities which continues to evolve, and for those families which have had the privilege of growing up with a certain exposure to what you call heritage and culture, they retain it, but they bring it forward, as we've tried to do. So this house is definitely an adaptive reuse. You may find a lot of contemporary elements in it, but you'll always find a simplicity and a tradition which continues. Ah, lovely. This thali is waiting to be filled, Abhay. It's a labor of love, I want to say. Abhay, what he's done with this place is truly a labor of love, which is why the thali hopefully will have that special taste. તો ગુજરાતીમાં તમે શું કહો છો for labor of love? મીઠાશ. ચાલો, આવો. પ્રેમથી કરો. Okay, there you have the classic Gujarati Sethia thali, which Abhay has beautifully called a Self-orchestrated symphony of tastes. self-orchestrated symphony of taste. This is just terrific. You're watching Elections on My Plate. Now, the 2002 post-Godhra riots election was the one that changed Gujarat perhaps forever. 20 years later, the scars still remain, especially in areas like this. Naroda Patia, a suburb of Ahmedabad where the worst massacre took place, 93 people were killed. This time, the BJP has given a ticket here to the daughter of one of those convicted for that massacre in Naroda. How is all that playing out on the ground? Let's find out. चुनाव के माहौल में तो लेकिन बीजेपी का तो दबदबा है. बीजेपी तो नंबर 1 पार्टी बन गई है गुजरात की, ये तो मानते हैं. अभी जैसे फिर से उन्होंने बोल दिया ना कि 2002 में हमने वो वापस करके बता, अमित शाह यहाँ ही बोल के गए कि दंगाइयों को, उन्होंने कहा दंगाइयों को सबक सिखाया. सर दंगाई थोड़े ही है हम लोग, सर दंगाई थोड़े ही है हम लोग. आम आदमी थे हम, हमारे यहाँ रह रहे थे, हमारे ऊपर उन लोगों ने दंगा ही करा, दंगाई हमला उन लोगों ने करा हमारे ऊपर. हम तो यहाँ शांति से रह रहे थे. जिंदगी बदल गई है कि नहीं 20 साल में? जिंदगी बदल गई. उसमें सरकार का क्या योगदान है आप बताओ? सरकार का क्या? हमने मेहनत करी, उससे जिंदगी हमारी बदली. आपने जिंदगी, अपनी लाइफ एक बार फिर बना दी. ऊपर वाले की मेहरबानी है, मेहनत करा हमने. रुखसाना जी, आप नरोडा पाटिया केस में विटनेस भी थी. आपकी मम्मी की मौत हुई और बहन, आपकी बहन की. 20 साल बाद अब कहीं ना कहीं आप आगे निकल गई है या अभी भी यादें आती है? याद जब मरेंगे तब तक नहीं भूल पाएंगे. आगे कहाँ निकलेंगे, बस वही दिल दिमाग में रहता है. माँ पैदा करने वाली माँ को थोड़ी भूल सकते. बहन, माँ. इंसाफ मिला है कि नहीं? इंसाफ मिला, वो पकड़ लिए, बंद कर दिए थे, वापस छोड़ दिए उनको. इंसाफ मिला था. पर आप छोड़ना नहीं चाहती नरोडा, यहीं रहेगी? नहीं, हम तो यहीं रह रहे. जब हमारे मरे तो हम नहीं मर जाएंगे. यहीं रह, जीना यहाँ, मरना यहाँ. मरना यहाँ बस. आप और आपके हिंदू जो भाई बहन है, उनमें संबंध अच्छे हो गए हैं कि नहीं? कि आप अपनी जिंदगी रहते हैं, वो अपनी जिंदगी? नहीं, बस हम तो हमारी जिंदगी रहते हैं. हम लोग उनसे अब वास्ता नहीं रखते. उनसे था, मेरी मम्मी ने भाई बनाया था, उसको खिलाना पिलाना सब करा था. उन्होंने मेरी माँ की जान ले ली, इसके लिए हम नहीं रखते. अब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में कैसे कुछ फर्क पड़ेगा, या आपको लगता है अब जो सरकार विकास की बात करती है आगे बढ़िए, बट किस तरह से देखती है आप चुनाव, नेता, इनसे कोई आपकी आशा है या नहीं? क्या आशा है, अभी तो कुछ आशा नहीं दिख रही है. महंगाई और मर हो रहे, महंगाई बढ़ती जा रही है. क्या खाएंगे, क्या करेंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे? तो सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है. महंगाई है ना, और क्या है. और हिंदू मुस्लिम भाईचारा हो पाएगा? अच्छा है ना, हो तो अभी, पर हो पाएगा या सुधर जाए तो अच्छा है. बहुत अच्छी बात है,
सुधर जाए तो अच्छी बात है। मुसलमान तो ऐसा मन में कुछ रखता नहीं है, भेदभाव नहीं रखते हम लोग। अभी भी मेरी फ्रेंड सिंधी है। तुम्हारी फ्रेंड सिंधी मिलती हो कि नहीं उनसे? आती है, मेरे घर पे रह के जाती है। हाँ तो फिर है, भाईचारा शुरू हो गया है। भाईचारा मेरा तो शुरू से है। तो 2002 ने वो तो नहीं बदला ना, आपकी दोस्ती तो रही है। नहीं बदला उसका, मेरा तो नहीं बदला। पर आप चाहती है जिन्होंने ये करवाया उनको सजा हो, वो बाहर ना निकले। उनको सजा ही, उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए, वो निकले ही नहीं बाहर, ताकि जो हमारे साथ हुआ है वो दूसरों के साथ भी उनको करने का मौका ही नहीं। चलिए मैडम, थैंक यू वेरी मच। इंसाफ मिलना चाहिए बस, इंसाफ मिलना चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। वोट दोगी कि नहीं? हाँ देते हम तो वोट, हर साल देते। हाँ वोट तो देते। पूछूं किसको वोट दोगी इस बार? हाँ किसको वोट दोगे? नहीं बस जो किसी पार्टी में विश्वास है कि नहीं? अरे विश्वास तो क्या विश्वास है, सब पार्टियां ही पार्टियां हैं, कोई फर्क नहीं, सब एक जैसे ही होते हैं। बड़ा खूबसूरत बनाती हो मैडम, बहुत अच्छा बनाती हो। कितना मिलता है दिन का? हाँ કેટલું મળે છે દિવસનું? કેટલું મળે છે તમે? मिल जाते हैं 40-50-100 रुपए मिल जाते हैं। 40-50-100 रुपए मिल जाते हैं करने में। बहुत खूबसूरत कर रही हो। क्या तो नीलम और रईसा दोनों साथ में काम करती है? वेरी गुड। आई डोंट नीड टू से मोर। हिंदू वुमन एंड अ मुस्लिम वुमन वर्किंग टुगेदर, साथ में काम करते हो, अच्छा है। Naroda Patia was a mixed neighborhood till the 2002 riots. The riots divided the communities here. So it's good to see Raisa and Neelam working together. बहुत अच्छा है। इतना शर्माओ मत, साथ में काम कर रही हो, ये अपने आप में बड़ी अच्छी बात। थैंक यू। चलोगे? आओ चलो, ले आओ, जल्दी करो। चलो बंदे चलो। One of the most striking features of Gujarat politics in recent times has been the near total marginalization of the Gujarati Muslim. In this election, the Congress has given 6 Muslims tickets, the AAP 2, the BJP none at all. In the previous assembly, 3 Muslims were elected, including one here in Jamalpur in the old city of Ahmedabad, where Muslims are more than 50% of the population. But here too, there is a new factor. Asaduddin Owaisi's AIMIM is contesting, leading many to believe that the Muslim vote could get split this time. Let's find out what Owaisi is up to in Ahmedabad. आप चुनाव, AIMIM चुनाव जीतने टिकट दे रही है या एक तरह से एक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मैसेज देने कि कहीं ना कहीं जो है हम भी हैं लड़ाई में? ये पहचान बनाने की लड़ाई है या जीतने की लड़ाई है? जीतने की लड़ाई है। हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं सब जीतने के लिए खड़े हुए हैं। अच्छा, एक बात समझना कि आज से 2 साल पहले हमारी पार्टी यहाँ पर आई थी। 20 दिन का समय मिला था हमको। 20 दिन के अंदर पार्टी रजिस्ट्रेशन भी करवाया था। हम लोग 36 मेंबर को टिकट दी थी, उसमें 26 टिकट जीत के आए, 10 हमारे ये कॉर्पोरेशन के चुनाव में। अच्छा, उनका रिकॉर्ड है, एक किसी का भी डिपॉजिट नहीं किया। अच्छा, वो जो हारे लगभग 100-150 वोट से, ऐसे कम वोटों से हारे। तो हम इंशाल्लाह अभी भी जो हमने 14 मेंबर को टिकट दिया उसमें से एक तो जीत गया, 13 रहे, उसमें से 13 में से ज्यादा जीत के आएंगे। हम लोग कैलकुलेशन करके जो जीतने वाली सीट है वहां पर ही हमने टिकट दी है। अगर हमको अगर ऐसा किसी को नुकसान करना होता तो हम 182 सीट पे लड़वाते। क्योंकि आपको कांग्रेस टिकट नहीं दिए हैं इसलिए आप लड़ रहे हैं AIMIM से। अगर आप कांग्रेस को टिकट मिलती आपसे, आपको कांग्रेस देती तो आप कांग्रेस से लड़ते? नहीं, मैंने कांग्रेस से तो कभी मैं लड़ता ही नहीं, कभी जिंदगी में नहीं लड़ा। क्योंकि कांग्रेस ने मेरे पास 2 बार मेरे साथ धोखा किया। रात को टिकट देती है, सुबह किसी और को देती, 2 बार ऐसा किया। कांग्रेस ने रात को आपको टिकट दी, सुबह किसी और को दिया? 2 बार ऐसा किया। तो कांग्रेस में आपका विश्वास नहीं है? मैंने तो राजकारण छोड़ दिया था।
मैं तो राजकारण तो फिर वापस क्यों आ गए AIMIM के साथ? इसलिए आया कि मैं जब कांग्रेस के अंदर भी था तो मुस्लिम दलित की क्यादत बढ़ा रहा था, अब भी ये जो पार्टी है दलित मुस्लिम आदिवासी किसी की क्यादत बढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये अपने मुस्लिम की आदिवासी की क्यादत बढ़ा रहे, मुझे अच्छा लगा, मैं इनके साथ में ज्वाइन हुआ और मुझे उन लोगों ने ऑफर की। क्योंकि ये कहा जा रहा है गुजरात की राजनीति में अब मुसलमानों के लिए कम जगह रह गई है, 2-3 सीट से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता मुसलमानों। ये आप मानते हैं कि नहीं कि धीरे धीरे बीजेपी के चढ़ने से बाकी पार्टियां भी मुसलमानों को टिकट नहीं देती अब? नहीं, ये सही बात है, मैं भी मानता हूँ कि तीन सीट रह गई है, ये इनका एजेंडा है। बीजेपी कांग्रेस और ये छोटा रिचार्जर आप पार्टी, तीनों का एजेंडा है कि मुस्लिमी की क्यादत खत्म करो। हम लोग मुस्लिमों की क्यादत बढ़ाने के लिए आए ना। इतनी आप मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वो हिंदू वोट बैंक की राजनीति करते हैं। दलित मुस्लिम आदिवासी के हमको साथ में लेकर चलते, हमारे साथ में सभी है। हमने काउंसिलर जो बना उसके अंदर एक आदिवासी भी है और हमारी बीना बहन जो है परमार एक अपने SC सीट से भी जीत गया। तो आप मुस्लिम दलित आदिवासी की राजनीति करना चाहते हैं? अभी हम लोग आए हैं तो अच्छा सबको लेकर चले, लेकिन हमारे साथ में ये तीनों। आप वोट कटुआ पार्टी नहीं है? कभी भी नहीं, हम बनेगी भी नहीं, ऐसा हम कभी नहीं, ऐसा भी हम कभी भी नहीं करेंगे। हम लोग क्यादत बढ़ाने के लिए आए और क्यादत बढ़ाएंगे। आप ये मानते हैं 2002 के दंगों के बाद मुस्लिम हिंदू बढ़ गए हैं, अहमदाबाद में पूरी तरह से बढ़ गए हैं या नहीं? सही है कि नहीं? नहीं सही बात, ये सही है कि नहीं? नहीं, ये बंटवारा किसने किया? किसने किया? RSS बीजेपी ने किया ना। ये हम लोग कौमी एकता की मिसाल बनेंगे, सबको टिकट देकर सबको जिता कर हम एकता की मिसाल बनेंगे। तो आप मुस्लिम वोट बैंक करेंगे, वो हिंदू वोट बैंक करेंगे? नहीं, उनको करने दो, हिंदू वोट करने दो। हम तो सबको साथ में लेकर चलने वाले, सबको साथ में लेकर चलेंगे। और आपके वोटर हिंदू मुस्लिम दोनों हैं? हम हिंदू मुस्लिम वोटर, हम उसी से जीत कर आए थे। हमारी जो जमालपुर की सीट है वहाँ पर 40% हिंदू वोट है, 60% वोट मुस्लिम वोट है और हिंदू वोट। तो हिंदू वोट भी मिलेगा आपको? हाँ, मिलेगा। चुनाव में क्या होगा? यहाँ चुनाव आ रहा है, क्या भाजपा आएगी? भाजपा आएगी। हाँ, मुस्लिम वोट बैंक हिंदू वोट बैंक की राजनीति चल रही है कि नहीं? मुसलमान एक तरफ, हिंदू एक तरफ चल रही है। हाँ, तो कौन इस आम आदमी पार्टी, MIM? वो सब कर लेंगे जो करना है, बाकी आने की भाजपा ही है। शांति है कि नहीं? शांति तो है, 27 साल से शांति, 28 साल से। तो आप खुश हैं? हम खुश हैं। आपको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं? हम खुश है, तभी तो सरकार चल रही है। अगर खुश नहीं होते भाजपा की तो मुस्लिम एरिया में लोग खुश हैं? अब खुश है, बहुत खुश है। ये बताइए, जमालपुर में विकास हुआ है कि नहीं? जमालपुर में विकास हुआ है कि नहीं? पूरे गुजरात में विकास हुआ। हाँ, क्या हुआ है जमालपुर में? क्या हुआ? पूरे गुजरात में विकास हुआ है। तो मोदी जी की सरकार ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो ये OWC वगैरह आ रहे हैं यहाँ, कह रहे हैं सब वोट काटू है। ये वोट काटू है? सब वोट काटू है। मुस्लिम जो समुदाय है ठीक ठाक आपको? मोदी जी के साथ है। कोई मुस्लिम भी मोदी जी के साथ है? मोदी जी के साथ है। मोदी जी के साथ खुश है? नहीं, क्यों? बस ऐसे ही बहुत महंगाई कर दी। हम क्या खावे, क्या कमावे, क्या खावे। पर यहाँ अब केजरीवाल भी आ गए हैं, OWC भी आ गए हैं, कांग्रेस। जो आवे वो सही है। हाँ। अपने तो रोटी कमा के खाने। महंगाई है? महंगाई बहुत है, थोड़ी कम कर दो तो हम सबको दे देंगे। तो अगर महंगाई कम हो तो मोदी जी को वोट दोगे कि नहीं? नहीं, मोदी को नहीं दे। क्यों? अब देने ही नहीं है। मोदी जी ने विकास लाया कि नहीं गुजरात? करी मोदी जी ने। हाँ, महंगाई नहीं करी मोदी जी ने, महंगाई करी। महंगाई है? हाँ, खाली बस। महंगाई से कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, खाली महंगाई की तकलीफ है, बाकी कोई तकलीफ नहीं है। बाकी सब सुख शांति है, हिंदू मुस्लिम सब ठीक है। वो बात नहीं, वो सब पिक्चर वाली बात नहीं जाने। ये OWC केजरीवाल ये सब आ रहे हैं यहाँ चुनाव लड़ने। आएंगे वो जो महंगाई सस्ते कर वोट देंगे। जो महंगाई कम करेगा उसको आप वोट दोगे, फिर वो बीजेपी हो कोई भी हो। आपकी अरे ये क्या है? पानीपुरी है, पानीपुरी। पानीपुरी, और ये क्या दिया है उसके साथ? बटाना रगड़ा। रगड़ा विद पानीपुरी। अरे वाह, ये बताओ ये इसमें क्या होगा चुनाव में? केजरीवाल आएगा, केजरीवाल। इधर केजरीवाल भी है, OWC भी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी है। ओवैसी का काम नहीं है यहाँ। OWC का कोई काम नहीं है? क्यों? नहीं, वो फेल माना। वो कहता है मैं मुस्लिमों का हिमायतदार हूँ। कुछ नहीं है, वो तो खाली केजरीवाल आएगा। केजरीवाल आएगा। कांग्रेस भी नहीं आएगी।
कांग्रेस भी नहीं आएगी, पर मुस्लिम वोट फिर डिवाइड होने वाला है इस बार। खाला केजरीवाल को ही वोट देगा, कोई को नहीं देगा। नहीं, मोदी जी कहते हैं पूरे गुजरात में विकास हुआ है। कोई विकास नहीं किया मोदी जी ने, क्या विकास किया, सब देश तो गिरमी रख दिया। खिलाओ। हाँ हाँ, चला एक खिला दे। अरे बाप रे, ये क्या रगड़ा पैटिस के साथ है? ओए बाबा, खालू तीन दरवाजा सीढ़ी की पकौड़ी है। मार दिया आपने, मसाला डाल दिया। तो आपके लिए केजरीवाल तड़का है इस बार। चलिए, थैंक यू बहुत। अरे मेरे लिए समोसे, ट्रस्ट मी, फ्रॉम माई चाइल्डहुड मेमोरीज नथिंग लाइक अ गुड अहमदाबादी समोसा। लगा दो, मटन का है ना, लगा दो, तेल ज्यादा है। अरे बाप रे, वेरी नाइस। अच्छा, ये मटन कबाब भी लगा दे। मटन कबाब, मटन समोसास। क्या होगा चुनाव में, क्या होगा? कांग्रेस आएगी। अच्छा, इस एरिया में कांग्रेस आएगी। सरकार किसकी बनेगी? कांग्रेस की। अच्छा, रेडी? वोट होगा थोड़ा गरम है। अच्छा जबर भाई, ये क्या बन के साथ दे रहे हो? बन के साथ ऐसे भी खा सकते हैं, खाना हो तो और ये बन के साथ, इसमें और बेटर है। और टेस्ट बढ़ जाएगा इसमें आपका। ऐसे कैसे? इसको लेके तोड़ो, उसको तोड़ो। समोसे सब खाई जाओ। समोसास आर टू गुड। थोड़ा सैंडविच बना दो, ये इसको नीचे, नॉन वेज मटन समोसा सैंडविच, लवली। आई कीप सेइंग food unites where politics divides. That's why we call it elections on my plate. Next stop, Manik Chowk on the other side of the road. Veg food. Come with me. Okay, we've come from the non-veg side of Ahmedabad's culinary divide to Manik Chowk, the vegetarian food magic kingdom of Ahmedabad. I want to try an old favorite, pineapple sandwich. Come with me. पर क्या बना रहे हो? अरे बाप रे, बटर देखो, कितना बटर लगाते हो, मार दोगे यार। ये कौन सा सैंडविच है? चीज चटनी। चीज चटनी। ये घुघरा। घुघरा, पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में लगा है, 2 मिनट। पाइनएप्पल भी बन रहा है। चॉकलेट सैंडविच भी बनता है क्या? चॉकलेट सैंडविच, पाइनएप्पल सैंडविच। इट्स अ फूड मैजिक किंगडम व्हेन यू कम टू मानिक चौक। ये देखो पाइनएप्पल, हाँ करता है तो मार देगा। बटर के साथ वो भी पाइनएप्पल सैंडविच। શું ખાધું? પાઇનેપલ સેન્ડવીચ, હા, પછી ઘૂઘરા સેન્ડવીચ, ઘૂઘરા, ઢોસા, બધું એક જ માણસને ખાઈ લીધું। ભેગા આવેલા ને બધા ખાધું। અરે યુ આર હવે કાલે સવારે એક્સરસાઇઝ કરવા અંદર એક This is the best pineapple sandwich ever. ever. What is so special about it? It's got loads of carbs, loads of sugar, Lovely. and at 10 o'clock at midnight, it's fun to eat it. It's fun to eat pineapple Absolutely. sandwich with so much of butter. That is it. You have to indulge once in a while. This is it. You want to try one piece and I'll try. Go for it. Go for You it? need Go for it. Go for it. अरे मरी गया, Go for it. मरी गया। अरे वाह। What is better to follow, pineapple sandwich or elections? Pineapple sandwich. Elections are given. It's BJP, so it doesn't matter. Elections are a given? It's a given. Focus on the pineapple sandwich. Focus on the pineapple sandwich, forget the elections. Exactly right. This is the best ever. You should try it, cameraman. You're missing it out. Pineapple sandwich. Too good. Okay, pineapple sandwich done. Time for one final indulgence. After all, I'm in the city of my birth, Janmabhoomi. Come with me.
the other side of Ahmedabad's food divide to the pure vegetarian side. And what can be more vegetarian than good old Gujarati ice cream? Ice cream चाहिए? कौन सा है? बताओ कौन सा है? कीवी, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, बनाना, गुआवा, चिली, हनी बादाम। अरे मेरा ये है कि नहीं वो पान, चॉकलेट पान। बेस्ट आइसक्रीम कौन सा है? फेवरेट मैडम તમારું કોઈ ફેવરિટ કયું છે આઈસ્ક્રીમ? તમારું મિક્સ ફ્રૂટ, પાઇનેપલ। તમારું ફેવરિટ આઈસ્ક્રીમ કે ફેવરિટ આઈસ્ક્રીમ સ્ટ્રોબેરી? અરે સ્ટ્રોબેરી બહુ ડલ છે। તમારો मैंगो। मैडम मैंगो। ये गुजरातियों को, आप लोगों को आइसक्रीम इतना पसंद क्यों है? ठंडा होता है, एकदम ठंडा होता है, एकदम ठंडा होता है, डाइजिंग के लिए बहुत अच्छा है। डाइजेस्ट के लिए। ये देखो रियल टेस्ट ऑफ आइसक्रीम, नॉट टेस्ट, टेस्ट, TEST, गुड ओल्ड गुजराती स्टाइल। इट्स अ बेटर टाइम टू टॉक अबाउट इलेक्शन। अच्छा, इलेक्शन में क्या होगा? कौन सा है? कौन? मोदी। कांग्रेस। Don't waste time in Gujarat. You people as a reporter don't waste time. Don't waste time. 140 plus. गुजरात। हाँ क्या? पंजाब गुजरात विकास। पंजा करेगी? हाँ? विकास करेगी। अच्छा, तो ये पंजा है, इस तरफ मोदी है। पंजा 17 साल कहाँ गई थी? 17 साल कहाँ गई थी पंजा? 70 साल पंजा कहाँ गई थी? बीजेपी किधर गई थी? बीजेपी किधर गई थी? कितने साल? 25 साल से 70 साल तक क्या किया? बीजेपी ने क्या किया? सर बीजेपी का काम दिख रहा है गुजरात में। अच्छा, अब ये सब छोड़ो राजनीति, मेरा पान आइसक्रीम बनाओ बराबर। हाँ, लेट अस टॉक अबाउट इलेक्शन। नहीं, मेरे को पान आइसक्रीम चाहिए। कितना चॉकलेट डालो? ना चॉकलेट। अरे वाह, मस्त, वेरी गुड। चॉकलेट पान पसंद। फॉरगेट अबाउट पॉलिटिक्स, एंजॉय। Here is my chocolate pan ice cream. I love it. Now let me tell you that Modi ji and the BJP, it appears, still remain the flavor of urban Gujarat. So unless there's a major surprise on the 8th of December, it would seem that the BJP is all set for a 7th consecutive term in power. But what has lasted beyond the BJP is chocolate pan ice cream. नेता आएंगे जाएंगे, आइसक्रीम रहेगा ना? आइसक्रीम रहेगा। Thank you all very much. Enjoy elections on my plate.